اسی لیے تو نیر جلال پوری صاحب نے کہا تھا کہ ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، رات بھر محفل ہوئی پھر بھی تھکا کوئی نہیں۔ تو محفل شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بال آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، سر کے بال آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ جو دور کھڑے ہوئے دور دراز آ جا، میں دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ شامیوں کو سورجوں کی دشمنی بھاری پڑی۔ سنیے نئے شعر پڑھ رہا ہوں، بس دو شعر، میں نے شعر پڑھے بھی نہیں ہیں آج، کہ شامیوں کو سورجوں کی دشمنی بھاری پڑی، وہ جسے ہلکا سمجھتے تھے وہی بھاری پڑی۔ شعر سنیں، وہ جسے ہلکا سمجھتے تھے وہی بھاری پڑی۔ پوری توجہ، کہ اٹھ نہ پایا نہر سے عباس کے چلو کا بوجھ، اٹھ نہ پایا نہر سے عباس کے چلو کا بوجھ، ایک ایک موجے رواں پر تشنگی بھاری پڑی۔ اٹھ نہ پایا نہر سے عباس کے چلو کا بوجھ، ایک ایک موجے رواں پر تشنگی بھاری پڑی۔ شعر سنیں، ایک ایک موجے رواں پر تشنگی بھاری پڑی، تیر نیزے خنجر و شمشیر بھالے برچھیاں۔ اگر آپ تھکے نہیں ہوں گے تو بہت انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ تیر نیزے خنجر و شمشیر بھالے برچھیاں، جنگ کے سب اسلحوں پر ایک ہنسی بھاری پڑی۔ تیر نیزے، بہت شکریہ حضرات، تیر نیزے خنجر و شمشیر بھالے برچھیاں، جنگ کے سب اسلحوں پر ایک ہنسی بھاری پڑی، کہ شکر کر جنت کے شہزادوں نے اپنایا تجھے۔ میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ زور سے سن لیں، کہ شکر کر جنت کے شہزادوں نے اپنایا تجھے، سرکشی پر ہر تیری شرمندگی بھاری پڑی، کہ اشک ہم مداح مولا ہی رہے بس کامیاب، اشک ہم مداح مولا ہی رہے بس کامیاب، جو فقط شاعر تھے ان کو شاعری بھاری پڑی، اشک ہم مداح مولا ہی رہے بس کامیاب، جو فقط شاعر تھے ان کو شاعری بھاری پڑی۔ آئیے ہر دل عزیز شاعر جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ تشریف لائیں۔ جناب اسد نصیر آبادی ایک ایسا نام ہے کہ جو لوگ دور کھڑے رہتے ہیں خود بخود آگے چلے آتے ہیں، جو جانے لگتے ہیں واپس چلے آتے ہیں۔ محفلوں کی اکیلے کامیابی کے ضامن سمجھے جانے والے اسد نصیر آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ایک ایسی صلوات پڑھ دیں تاکہ لگے کہ آپ پوری طرح سے آمادہ ہیں۔ حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کئی سال میں نے اس محفل کو پڑھا۔ گزشتہ سال بھی میں اس محفل میں تھا، مجھے دوسرے دن فلائٹ سے پٹنہ جانا تھا۔ آج مجھے پٹنہ ہی پڑھنا تھا، لیکن یوسف بھائی اور ہمارے منو بھائی کا حکم، میں یہاں آپ کے سامنے ہوں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے، چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے۔ کہ ان سے ہی خدا سلامت رکھے طاہر بھائی، کہ ان سے ہی دل کو میرے قرار اور چین ہے، ان سے ہی دل کو میرے قرار اور چین ہے، یہ کربلا ہے سامنے ہی کاظمل ہے۔ یہ چار مصرے میں نے جو آج یہاں کے لیے میں نے پیش کیے ہیں، یہ کربلا
सामने ही काज़मैन है। दो मिसरे मौलाई बजमाए खास तौर से देखिएगा कि ये कह के मनु भाई कि ये कह के जिब्राइल अरे चले हैं बहिश्त से लखनऊ की जमीन पर जश्न हुसैन। क्या सुना? ये करबला सामने ही काज़मैन है। और ये कह के जिब्राइल चले हैं बेहेश्त से लखनऊ की जमीन पर जश्न हुसैन है। लखनऊ की जमीन पर जश्न हुसैन है। मिस्र उला के बाद मिस्र सानी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मिस्र सानी पे मैं आपसे दाद चाहूंगा, खास तौर से देखिएगा। मैं जलालपुर में पढ़ रहा था, मुझे कल भी जलालपुर पढ़ना था लेकिन नहीं जा सका। महफिलें बहुत मुझसे छूट रही हैं। 4 मिसरे जो पिछले साल मैंने पढ़े थे वो मैं पेश कर रहा हूँ। गालबन गुलरे साहब मेरे साथ थे, वो 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ खास तौर से कि जश्न सरकार वफा जब भी मनाया जाए। खास तौर से मिसरा ऐसा नहीं देखेगा ताहिर भाई कि जश्न सरकार देखिएगा भाई जब भी मनाया जाए फर्ज फर्ज बनता है सकीना को बुलाया। फर्ज बनता है सकीना को बुलाया जाए। और बिछ बिछ गया फर्श आज़ाद सज गया ताबूते हुसैन। आप पर चमे आबाद उठाया। आप पर चमे अब्बास उठाया जाए। एक नारे सलाम खास तौर से मैं पेश करूं खास तौर से। 4 मिसरे मैं आपकी मर्जी की पेश करने जा रहा हूं खास तौर से। देखिएगा भाई कि असगर को साहिल भाई असगर को इस तरह से लिए थे शहे उमम। खास तौर से जैसे लिए हूं बोलता कुरान हाथ में। 2 मिसरे खास तौर से मैं पेश कर रहा हूं कि मुट्ठी किए था बंद आसा
गिरेबान हाथ में। एक नारे सलावत भेजता हूं खास तौर से। अब्बास ने बहता हुआ दरिया नहीं छोड़ा। ये मिसरा सिरसी का था। परसों सिरसी मुझे पढ़ना था, आपके साथ नहीं जा सका, बहुत महफिलें छूट गई। हाँ बस ये मुझे जो है वो मिसरा जो है इस मिसरे पे मैं एक मतला दो चार शेर पेश करता हूँ खास तौर से। एक नारे सलावत आगे बुलंद भेजिए कि क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा। खास तौर से मतलब दो तीन शेर, ये शेर याद रह जाएंगे आपको, मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने कि क़िबला नहीं छोड़ा कभी, काबा नहीं छोड़ा। हमने बनी हाशिम का कबीला नहीं, हमने बनी हाशिम का कबीला नहीं छोड़ा। इस शेर के बाद मैं दो शेर आपके सामने पेश करूंगा और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी खामोशी भी वो होगी कि हमने बनी हाशिम का कबीला नहीं छोड़ा। मनु भाई पेश करें शेर कि 2 लाख के लश्कर ने तो की कोशिशें, लेकिन अब्बास ने बहता हुआ दरिया नहीं छोड़ा। ताहिर भाई कि 2 लाख के लश्कर ने तो की कोशिशें, लेकिन अब्बास ने बहता हुआ दरिया नहीं। अब्बास ने बहता हुआ, खुदा सलामत रखे इन आवाजों को। अब्बास ने बहता हुआ दरिया नहीं छोड़ा। मैंने कहा था इस शेर के बाद ये शेर याद रह जाएगा, आपकी खामोशी को भी मैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि टूटेगी। वो शेर मैं पेश करने जा रहा हूं खास तौर से कि ताबूत, सुनिए साहब, आप सुनिए शेर कि ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। जहां जहां रात है खास तौर से शेर सुने कि ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। अब्बास ने भाई को अकेला, मैं क्या दूंगा। सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। मोहब्बत बेटा, खुदा सलामत रखे, मौला सलामत रखे, खुदा सलामत रखे भैया। नारे हैदरी, खुदा सलामत रखे बेटा, खुदा सलामत। खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सारे मिलकर जवाब दे भाई, सब लोग बोले, सब लोग बोलिए, जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह मिलके। सुभान अल्लाह भाई, असद भाई, वाह 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 वाह। कि ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही नहीं है। ताबूत के पीछे ये अलम यूं ही
उसने भाई को अकेला नहीं छोड़ा। ये शेर भी खास तौर से मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हैं कि बोला ये जरी जान से जाओगे लईनो। तो खास तौर से देखिएगा कि बोला ये जरी जान से जाओगे लईनो, गर तुमने तराई का इलाका। सरकार गर तुमने तराई का इलाका नहीं छोड़ा, गर तुमने तराई का इलाका। ये शेर भी सुनिए खास तौर से कि 7 बार ये वार करना और इमाम की गर्दन पे वार किया शिम्र ने। चाहता था कि इबादत रुक जाए, लेकिन हुसैन का आखिरी सजदा। मैं उस तसव्वुर से मैं एक शेर पेश कर रहा हूं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मैं सरवर भाई पेश कर रहा हूं कि ये मन भाई कि ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए इबादत। खास तौर से दूसरा मिसाल देखिएगा कि ये शिम्र की कोशिश थी कि रुक जाए इबादत, शब्बीर ने भी आखिरी सजदा। अदब अदब शब्बीर आखिरी सजदा नहीं छोड़ा, शब्बीर ने भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। और ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई। दूसरा मिसाल खास तौर से कि ये बात अलग है कि जुदा हो गया भाई। अरे ज़ैनब ने भी यज़ीद को जिंदा नहीं। ज़ैनब ने जिंदा नहीं छोड़ा। एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। ये दिल्ली की एक तरह थी, जाफराबाद दिल्ली की, झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे। मेरे एक भाई ने फरमाइश किया है, अगर मैंने पढ़ा हो तो मुझे बता दें, और वरना मैं इसको पेश करूं। एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे, मतलब पेश खिदमत है खास तौर से पेश। एक बहुत बुलंद नारे सलवा दीजिए। कि मजबूर था हाकिम किसी खुदार के आगे। खास तौर से जनाब सैयद सज्जाद इस्लाम की खिदमत में कि मजबूर था हाकिम किसी खुदार के
कुछ बस ना चला सब्र की तलवार के आगे। दूसरा था कि झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे, कि बेड़ी बेड़ी जो पिन्हाने लगे आवाज ये आई, अरे झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार। झुकना ही जुल्म को बीमार के आगे, झुकना ही पड़ा जुल्म को बीमार के आगे। और ये शेर भी खास तौर साहिल भाई देखिएगा कि ताजीम को उठने लगे रिजवान ये कह कर, मन भाई, कि ताजीम को उठने लगे रिजवान ये कह कर, क्या मेरी हकीकत है अज़ादार के आगे, क्या मेरी हकीकत है अज़ादार के आगे। और आशूर को ये हाल था दरिया के किनारे, आशूर को ये हाल था दरिया के किनारे, अरे मारा गया जो आया अलमदार के मारा गया जो आया अलमदार के आगे। और बेटी थी असद शेर की, क्यों देती ना खुतबा, बेटी थी असद शेर की, क्यों देती ना खुतबा, चुप रहती भला कैसे सितमगार के आगे, चुप रहती भला कैसे सितमगार